सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सारियां संगतां गुरु दरबार विच आपो अपनियां हाजरियां लवा करके जिंदगी दे कुछ अहम पल्लां नूं सफलियां करन दे यतन कीते हन। अमृत वेले दी गुरबाणियां, पंजे बाणियां दा नितनेम करन दा अते सुनन दा सुभाग समा प्राप्त होया। मनुख अपनी इस जिंदगी तो कोई ना कोई लाहा प्राप्त करना चाहुंदा है। वो लाहा भावें समाजिक होवे, भावें धार्मिक होवे, भावें राजनीतिक होवे। सारे मनुखां दी तकरीबन ये तमन्ना बनी हुंदी है, कोई ना कोई लाहा लेता जावे। समाजिक नियमां दे विच सब तो वड्डा लाहा उसनूं कहंदे ने जिहड़ा कोई बहुता धन कमा के अपनी औलाद वास्ते बड़ा कुछ पैदा करदा है। गुरु साहिब जी महाराज कहंदे ने कि तूं लाहा प्राप्त कर, पर लाहा इहो जिहा खट जिहड़ा तैनूं दुनिया दे विच भी काम आवे ते भगवान दी दरगाह दे विच भी तेरे काम आवे। लाहा खाट होई है धनवंता अपना प्रभु ते आई है। परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़ के जिहड़ा तूं इत्थों लाहा तैनूं मिलना है, ये लाहा शमशान घाट तो अगाहां भी तेरे नाल निभेगा। बाकी दुनिया दीयां सब वस्तुआं शमशान घाट दे विच जाके खत्म हो जांदियां। जिंदगी दे इन्हां सवासां नूं सफलिया करना सब तो वड्डा लाहा है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सवासां करके जिंदगी है। सवास चल रहे ने तो जिंदगी है, वरना कुछ भी नहीं। ते गुरु साहिब जी महाराज कहंदे ने कि फिर इन्हां सवासां नूं तो सफलियां कर। ये इन्नी कीमती चीज़ परमात्मा ने तेरी देही दे विच पाई है। सारी दुनिया दा धन एक पासे ते मनुख दी जिंदगी दा सवास एक पासे। सारी दुनिया दा धन दे नाल एक भी सवास बंदे नूं मुल नहीं मिलता। एक भी सवास सारी दुनिया दे धन दे नालों इन्ना कीमती है। ते गुरु साहिब जी महाराज इस कीमती चीज़ की सांभ संभाल ही मनुख नूं समझा रहे हैं कि इन्नी कीमती चीज़ है। दुनिया दे धन पदार्थ सब कुछ शमशान घाट तो पिछे रह जाते हैं। एको ही परमात्मा दे नाम दा धन है जिहड़ा शमशान घाट तो अगाहां भी मनुख दे नाल जांदा है। ते मनुख नूं इन्हां सवासां नूं सफलियां करन वास्ते परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़ बैठना पैंदा है।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੈ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਂਗਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗਾ ਸਭ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਸਭ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਸਭ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਏਗਾ ਸਭ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰਦੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮਨ ਜੋ ਮੈਲਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀਏ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
कि जो तूं छड्डना सी हजे तक तूं वो वस्तु छड्डी नहीं है। जो तैनूं कहा सी कि तूं ग्रहण कर ला, ਉਹਨੂੰ तूं हजे तक अपनी जिंदगी दे विच ग्रहण किया ही नहीं है। बेईमानी करनी नहीं छड्डी, झूठ मारना नहीं छड्डिया, तो फिर गुरबाणी ने इस विषय ते भी अटल फैसला दिता है। एक तो 40-50 साल तो लैके परमात्मा के घर विच आ रहा है, एक नूं 40-50 साल लग गए, वो कदे परमात्मा के घर दे विच आया ही नहीं आया। तो इतनी क मनुख की तकरीबन जिंदगी है। एक तो कदे आया ही नहीं, एक लगातार आ रहा है, एक लगातार आके भी झूठ मारदा रहिंदा है, बेईमानी नहीं छड्डी, ठगी चोरी करनी नहीं छड्डी। एक कदे आया ही नहीं, वो भी सारा कुछ अपने घर दे विच कर रहा। तो गुरबाणी ने फैसला दिता है, पाप पुण्य दोए एक समान। जिहड़ा 40-50 साल तो नहीं आया वो भी इक्को जिहा है, जिहड़ा आ रहा है वो भी इक्को जिहा, दोने बराबर ही ने, कोई फर्क नहीं। एक कहता है मैं पुण्य किया है, एक कहता मैं सारी जिंदगी पाप करता रहा, सारी जिंदगी पाप ते पुण्य दोने बराबर हो गए, क्योंकि पुण्य करने वाले ने बेईमानी करनी नहीं छड्डी, ठगी चोरी करनी नहीं छड्डी। यही चीज़ां गुरु साहिब जी महाराज छड्डण नूं कह रहे हैं, क्योंकि हजे तक ये पछताया नहीं है अपने अवगुणां नूं चेते करके। चर्च घर दे विच एक उन्हां दा स्पैशल कमरा बनिया हुंदा है चर्च दे विच। वो कमरे नूं 4 चफेरियां तो बंद किया जाता है, ताकि जिहड़ा मनुख उस कमरे दे विच बैठे उहदी आवाज़ जिहड़ी है बाहर सुनाई ना देवे। ते वो स्पैशल कमरा इस वास्ते बनिया हुंदा है कि इत्थे बह के मनुख उच्ची उच्ची रो के अपने अवगुणां नूं चेते करके पछता सके, उहदा उच्ची उच्ची रोना बाहर किसी नूं सुनाई ना देवे। चर्च विच स्पैशल कमरा बनदा है इस गल का, कि इत्थे आके पछतावे अवगुणां नूं चेते कर करके। मनुख सारी दी सारी जिंदगी परमात्मा दे नाल बतीत कर दिंदा है, इनू अपने गुनाह चेते नहीं आउंदे। ते जिथे भी जांदा है, भावें एक चर्च विच जा रहा है, भावें मंदिर जा रहा है, भावें मसीत जा रहा है, भावें गुरुद्वारे जा रहा है, जिथे भी जा रहा है, अगरवाइज इहदा मन मैला है तो सब जगह नूं मैलियां करके रख दूगा, जिथे भी हथ पावेगा मैलियां कर दूगा। जे सोने नूं हथ ओ पाए तां खेहू सेती रल गया, फैसला गुरबाणी दा है। इहो जिहा मनुख जे कदे सोने नूं भी हथ ला देवे, उहनूं खाक बना के रख दिंदा है। ते गुरबाणी ने जिन्ने फैसले दिते ने कि जे तूं आया पहले तो जे संसार दे विच आए तो संसार चों कोई लाहा खट, जे संसार दे विच आके परमात्मा दे घर दे विच आए इत्थों भी लाहा खट। जिंदगी तैनूं मिली है कुछ लाहा खटन वास्ते, वरना गुरबाणी ने करोड़ां प्रमाण दिते ने, जिन्हां प्रमाणां तो सब कुछ सतगुरु महाराज जी कहंदे इत्थे छड्ड के जाना है, मत चक्कर दे विच रही। होर ते होर संसार दे विच सारे धर्मां दी रौ रीत रिवाज मर्यादा बनी हुई है कि जदों भी कोई प्राणी अकाल चलाना करदा है तो उहनूं हत्थां दे नाल कोई अगन भेट करदा है, कोई धरती दे विच दब रिहा है।
कोई पानी दे विच रुड़ रहा, कोई किवें। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने अगर वाइजे मन में लै के, गुरु साहिब जी महाराज जियां दा सेवक भाई सुथरा, भाई सुथरा ने एक दिन आसा दी वार दा कीर्तन हो रहा सी ते रागी सिंह कीर्तन करते पे सी। संगत बड़े आराम दे नाल बैठ के सुन रही सी, बिल्कुल देवतियां की तरह। रागी सिंह कीर्तन करते रहे ते भाई सुथरा भी विच बैठा सी। वखरी जी जिंदगी सी भाई सुथरे शाह जी नाल। बिच संगत दे बैठा बैठा एकदम खड़ा हो गया। संगत विच खड़ा होके भाई सुथरे ने की कीता, एक आवाज़ दिती। वो भाई सुथरे की आवाज़ सी, कहंदा जेड़े कीर्तन कर रहे ने इन्हां नूं लानतां, जेड़े कीर्तन सुन रहे ने इन्हां नूं लख वारी लानतां। भाई सुथरा कहंदा ते महाराज दा सेवक सी अनिल, जेड़े कीर्तन कर रहे ने इन्हां नूं भी लानतां, जेड़े कीर्तन सुन रहे ने इन्हां नूं लख वारी लानतां। बड़ी वड्डी गल कह गए। सारे जेड़े कथा कीर्तन करन वाले सी कीर्तनीय सिंह ते सारी संगत दा ध्यान सी जिहड़ा एकदम भाई सुथरे ते जा गया। एकदम इन्नी गल कह के सुथरा दरबार चों बाहर निकल गया, चलिया गया। इस तो पहला कि कोई उन्होंने कुछ बोले, इन्नी गल कह के दरबार चों निकल गया। हुण गल सुथरे ने बहुत वड्डी कहती ते जिमें उन्होंने रागी सिंघां ने सुनिया ते संगत ने सुनिया ते फिर वो बैठे तां दरबार दे विच सी। फिर उन्होंने ये महसूस होया कि कदों कीर्तन की समाप्ति होवे ते कदों सुथरे की बांह नूं पकड़ गई। एडी वड्डी गल कह के गए। सुथरे का जीवन ही इहो जिहा सी। बड़ा लम्मे अरसे तो लैके मठियाई की दुकान तो मठियाई खांदा रहा सुथरा। मठियाई खांदा रहा तो जिद्दे उन्हें दुकानदार ने पैसे मंगे तो मुकर गया, कहना नहीं दिंदा, नहीं दिंदा। जद मुकर गया तो वह छेवें पातशाह महाराज कोले ले गए। कहंदे महाराज आ तुहाडा सुथरा सिंह है जिहड़ा ये लम्मे टाइम तो लेके मैथों मठियाई खांदा आ रहा दुकान तो, जे मैं अज पैसे मंगे तो मुकर गया, कहंदा मैं दिंदा ही नहीं। ये तो बड़ा माड़ा कर्म है, मैथों मठियाई खाधी है। महाराज कहन लगे छेवें पातशाह कहन लगे सुथरिया तो मठियाई खाधी है? कहंदे महाराज हाँ लम्मा टाइम हो गया मिठाई खांदे नूं। कहंदे फिर इहदे पैसे दे। छेवें पातशाह महाराज नूं भाई सुथरा कहन लग्या महाराज तुसीं आप ही तां आखिआ केते लै लै मुकर पाहे, भी पहलां बथेरे जाने मुकरे सी ते हुण लै लै के तुसीं भी मुकर जाओ। मैं तो कहंदे जपजी साहिब के अनुसार वो कीता, मुकर गया। कहना तुसीं आप ही कहने हो केते लै लै मुकर पाहे। भाई सुथरे नूं छेवें पातशाह महाराज कहन लगे फिर अगाहां वाली भी पंक्ति पढ़ लै, केते मूर्ख खाही खाहे। अगाहां वाली पंक्ति भी पढ़। तो भाई सुथरे का जीवन ही हो जा सी। इन्नी गल कह के सुथरा दरबार दे विचों बाहर निकल गया ते जेड़े रागी सिंह सीगे कीर्तन करन वाले उन्हां दे अंदर अग दे भांबड़ बल ते संगत भी
कि कदों कीर्तन की समाप्ति होवे ते कदों सुथरे नूं पकड़ीए। गल बहुत वड्डी कह गए। जद कीर्तन की समाप्ति हुई ना ते सारी संगत छेवें पातशाह महाराज कोल चली गई। महाराज आ जिहड़ा तुहाडा सेवक है ना, जिन्हों तुसीं बड़ा प्यार करते हो, ये बड़ी वड्डी गल कह के आए। महाराज कहन लगे भाई की कह के आए? कहंदे महाराज ये दरबार दे विच खड़ा होके आसा दी वार दा कीर्तन हो रहा सी। कीर्तन हुंदियां हुंदियां ये गल कह के आया है, लाणत उन्हां दे जिहड़े रागी सिंह कीर्तन करदे ने, लखां वारी लाणत उन्हां दे जिहड़े कीर्तन सुणदे ने। यह गल कह के आया दरबार साहिब दे विच। जिन्ने परमात्मा दे प्यारे हुंदे ने ना, इन्हां रब दे प्यारियां दी देखना, सुनना, बोलना, चलना, कुछ करना, ये सब दा वक्खो वखरा हुंदा है। वक्खरो वखरे ढंग दे नाल जिहड़े वो रब दे प्यारे रब दी पूजा करते हैं। कहन लगे सुथरिया तू ये गल कह के आए? भाई सुथरा कहन लगा महाराज नहीं, मैं ते नहीं कहा। रागी सिंह कोल बैठे कहन लगे महाराज ने कहा। संगत भी कह लगी महाराज कह के, हुण कह के भी गया सी दरबार साहिब दे विच, ते कह के भी बहुत वड्डी गल गया सी, कोई छोटी मोटी गल नहीं। सुथरा कहन लगे महाराज मैं नहीं कुछ नहीं कहा। रागी सिंह बड़े तड़प तड़प के संगत दे विचों बड़े तड़प तड़प के कहन महाराज मुकरदा है, ये कह के आया। सानू चंगी तरह पता है महाराज, सानू तो कह के आया। साडे याद है कोई साडी याद शक्ति इहो जी थोड़ो है भी जिहड़ी असीं इन्ने चिर च भुल जावांगे सुथरे दी कही हुई गल नूं। ते जदों बिल्कुल सारिਆਂ ने बाहां खड़ियां कर करके कहा कि साडे सब दे याद है कि सुथरे ने आ गल कही है कि लाणत उन्हां दे जिहड़े कीर्तन करदे ने, लख वारी लाणत उन्हां दे जिहड़े कीर्तन सुणदे ने। जद सब ने पूरे तसल्ली दे नाल महाराज नूं कह दिता ना, तसल्ली दे नाल, फिर भाई सुथरा कहंदा देख लो हजे तक भी तुहाडे कोल समा हैगा, मैं कुछ कहा नहीं। समा हजे भी है तुहाडे कोल। सारे कह लगे ने कह के आए हैं, तो कह के भी गया सी। जद बिल्कुल सारिਆਂ ने कहता गल पक गई, भाई सुथरा उत्थे मन गया, कहंदे महाराज मैं कह के आया सी, मन गया। मैं कह के आया सी। छेवें पातशाह महाराज कहन लगे फिर तो रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ते ਜਿਹੜੇ कथा कीर्तन सुन रहे सी, तू एडी वड्डी गल क्यों कह के आए? महाराज कहन लगे ते बहुत माड़ी गल कीती तू। कहंदे महाराज माड़ी गल मैं नहीं कीती, माड़ी गल ते इन्हां सारिਆਂ दी है, सारिਆਂ दी माड़ी गल है। ये कीर्तन करन वालियां दी भी माड़ी गल है ते सुनन वालियां दी भी बड़ी माड़ी गल है। मेरी कोई माड़ी गल नहीं है। मैं ते जो कहना सी साफ कह दिता और इन्हां दे सामने कह दिता। दुनिया दे विच जिहड़ी सच्चाई नाम दी चीज़ है, जिन्हों असीं सच कहने हैं, हर एक मनुख की समझ दे विच सच नहीं आउंदा। हुंदा ते सच है, पर वो सच जिहड़ा है हर एक मनुख की समझ दे विच नहीं आउंदा। एक 70 साल का बुढ़ा 20 साल के नौजवान नूं सच्ची गल कहे, सच जाने 20 साल का नौजवान 70 साल के बुढ़े की नहीं गल मनेगा, नहीं मनेगा।
गल तो उहदी सच्ची है, पर 20 साल के नौजवान नूं दी गल झूठी लगेगी। ये गल समाजिक नियमां दे विच साडे चलदी है। साडी जिहड़ी औलाद है, जे बाप एक बारी गल कह दे ते बच्चे कदे मनदे ने? नहीं मनदे। पर जे कदे बाप की कही हुई गल जदों उन्हां दी जिंदगी ते हंड जाती है, फिर मन जाते हैं भी बाप ने सच कहा सी, फिर मनते हैं, उस तो पहला नहीं मनते। दुनिया ते बहुत करोड़ां तरह का सच जिहड़ा है इहो जिहा है जिहड़ा दुनिया की समझ दे विच नहीं आउंदा, नहीं आवेगा कदे। माँ और बाप नूं पता है कि अगन बच्चे नूं जाल देवेगी, बच्चा तो उधर नूं भजदा है, माँ उसनूं डांटदी है। गल तो सच्ची है, पर एक बच्चे की समझ दे विच नहीं आउंदी। तो जे उहदी समझ विच नहीं आउंदी, बहुते बच्चे अपनी माँ नूं अपनी दुश्मनी समझ लैंदे ने, मैनूं रोकदी है तो सच, समझ दे विच नहीं आया। दुनिया ते करोड़ां तरह दीयां इहो जिहियां घटनावां ने हर एक दी जिंदगी दे विच, जिहड़ियां हुंदियां सच ने समझ दे विच नहीं आउंदियां। जिन्ना टाइम समझ दे विच चेते शक्ति दे विच ना आवे, उन्ना टाइम मनुख वास्ते रब भी की है, एक तुच्छ गल रह जाती है, कुछ भी नहीं दिंदा जे समझ दे विच नहीं आते। करोड़ां तरह के इहो जे सच ने, तो इहो जे सच जिहड़े ने, सच ते है सब कुछ, सारी सृष्टि सच है, सारी परमात्मा की कीती हुई रचना सच है, पर मनुख की समझ दे विच नहीं आउंदी, ये समझना नहीं चाहुंदा। बड़ी वड्डी गल सी सुथरे दी। महाराज मैं जो कहा सच कहा। हुण वो बेचारे जिहड़े कथा कीर्तन करते सी ते जिहड़े कीर्तन सुन रहे सी, वो तड़फे पे सी, तड़फे पे सी भी सुथरे ने सानू किवें लाहनत पाती। भाई सुथरा कहन लग्या महाराज जो मैं बोलिया वो मैं सच बोलिया, जो इन्हां ने सुनिया सच सुनिया। कहन लगे सुथरिया जरा तो बुझारतां ना पा, सीधी गल दस। भाई सुथरा बुझारतां पाउंदा सी ज़्यादातर। छेवें पातशाह महाराज नूं कहन लग्या महाराज लानतां इन्हां रागियां नूं इस करके पाईयां कि करदे आसा दी वार दा कीर्तन सी ते इन्हां दी सुरत किसे पासे होर तुरी फिरदी सी। लख लाहनत इन्हां सुनन वालियां नूं मैं इस करके पाई कि इन्हां दे विचों 80% तो इहो जे बैठे सी जिहड़े कहंदे सी कदों समाप्ति होवे आसा दी वार दी, कदों असीं अपने घर नूं चलीए। सारिआं दी सुरत इन्हां दी बाहर पई सी ते इन्हां नूं भी लाहनतां हो गईआं ते इन्हां नूं लख वारी लाहनतां हो गईआं। फिर लाहनतां ते पाउणिआं हक बनदा सी। सारे तड़फ उठे सुथरे दी गल सुन के। ये महाराज असीं तां सुरत लाई बैठे सी, कोई नहीं बोल रहा सी, बिल्कुल रागी सिंह कीर्तन कर रहे सी, सुरत ला के असीं सुन रहे सी। जदों ये गल कही फिर भाई सुथरा महाराज का सेवक सुथरा भाई कहन लग्या, कहंदा चंगा फिर इंज दसो कि अज अमृत वेले गुरु साहब का हुक्म की आया सी, की हुक्म आया सी महाराज का, की उपदेश किया महाराज ने। सारे रागी ते जेड़े बड़े तड़फ तड़फ के सुथरे दे वल जा रहे सी, सारे दे सारे शांत हो गए, किसी दे चेते नहीं रहे, किसी दे याद ही नहीं कि गुरु साहब का हुक्म की आया सी। कहन लगे महाराज मैं लाहनतां इस करके पाईआं ने कि अकाल पुरख का हुक्म ते इन्हां दे किसे दे चित्त विच नहीं, मेरी कही हुई गल इन्हां दे सारिआं दे दिमाग दे विच घर कर गई। तो फिर महाराज हुण लाहनतां योग ही नहीं, लाहनतां ही पैणगी। मेरी गल सारिआं दे दिमाग विच इन्हां दे, गुरु साहब का हुक्म इन्हां दे चेते विच नहीं है, इन्हां दी समझ दे विच नहीं है।
सुथरे शाह नूं महाराज कहन लगे, सुथरिया अकाल पुरख दे सेवक ते होए ने, पर सारे सेवकां दे विचों तेरा अंदाज भी वखरा ही है। दसो महाराज कहंदे महाराज दा हुक्म ते इन्हां दे चेते विच नहीं है, मेरियां गल्लां चेते विच ने। अगर भाई जे परमात्मा दा हुक्म सुनन आए हुंदे ते परमात्मा दे हुक्म नूं सुन लैंदे, मेरियां गल्लां नहीं। ये ते महाराज इत्थे मेरियां गल्लां सुनन वास्ते आए सी। ते हुण महाराज दसो, छेवें पातशाह महाराज कहन लगे भी वाकई सुथरिया तेरी गल ठीक है। सारे शैंत होके बह गए, की बोलना सुथरे ने, ये गुरु साहिब दा हुक्म ते साडे याद नहीं है। तो गुरु साहिब जी महाराज दा हुक्म है कि जेड़े तेरे जन्मां जन्मांतरां दी मैल तेरे मन नूं लगी हुई है, इनू धो लै। वो धोपै नावै कै रंग, इनू धो। पर जे तेरे मन की मैल नहीं धोती जाती ना, तू चेते रखी, फिर तेरी जिंदगी इंज है जिवें तेरे हत्थां नूं कालख लगी होवे। ते हत्थां नूं जिहदे कालख लगी है, जदों अपने घरे काम करूगा वो सारियां चीज़ां नूं कालियां कर दू। जे कदे वो रिश्तेदारी दे विच चलिया गया, उत्थे भी चीज़ां नूं कालियां करूगा, मशीनरी नूं हत्थ पाऊ उहनूं भी काली करूगा। बर्दाश्त करियो। जे कदी वो गुरुद्वारे चलिया गया, उत्थे भी सारियां चीज़ां नूं कालियां कर दूगा, उत्थे भी कालियां कर दूगा। इस वास्ते गुरबाणी का उपदेश है कि जेड़े तेरे हत्थां नूं कालख लगी है ना, ये पहला कालख ला, फिर तेरा घर साफ सुथरा तैनूं नज़र आऊगा। असी हथ क्यों धोने आ वारी वारी? गुरु दरबार दे विच आउंदे आ ना, पैर भी धोने आ, हथ भी धोने आ। ये तो गल कहन मात्र नहीं है। कारण की है कि जदों असी घरों चले हैं तो गुरुद्वारे आउण दे विच विच असी कोई काम नहीं किया, पर हथ तो असी फिर भी धोने हैं। उहदा मूल कारण हुंदा है कि कोई भी मिट्टी घट्टा परमात्मा दे दरबार दे विच असी ना लेके जाइए, यही कारण है। पर इत्थे सतगुरु महाराज का उपदेश ये है भी जिमें तू अपने हथ पैर पहला घरे इशनान किया, साफ कपड़े पाए, फिर तो घरों गुरुद्वारे आया, फिर उत्थे आके फिर हथ पैर धो के फिर परमात्मा के दरबार दे विच आउणा सजना। फिर थोड़ी जी खेचल महाराज कहंदे होर कर भी अपने मन की मैल उतार लग सतगुरां दे शब्द दे नाल। जे मन की मैल उतर गई तेरा सारा कुछ साफ हो जाना है। जे मन की मैल नहीं उतरी तो फिर तेरे समझ ले हत्थां नूं कालख लगी हुई है। जिथे भी हथ पा रहे हैं हर एक जगह ते कालख ही कालख है। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ तो हथ पावेगा ਉਹਨੂੰ काली कर देवेगा। माफ़ करना हत्थां दे विच ते गुरु की किरपा सानू प्रसाद भी लेना पैंदा, लैने ये भी असी लैने हत्थां दे विच। ते फिर गुरबाणी का जिहड़ा फैसला है किसी मनुख का फैसला नहीं है, टालिया जा सकता है। गुरबाणी के फैसले तो इन बैनने टालिया किवें जाऊगा। गुरु साहिब जी महाराज कहते जेड़े हत्थां दे विच परमात्मा की प्रसाद किरपा लेके जाना है, जरा उन्हां हत्थां ते नज़र मारिया करके इन्हां हत्थां नूं कालख ते नहीं लगी हुई। किते ये ना होवे कि परमात्मा की किरपा रहमत हुई तेरे हत्थां दे विच परमात्मा की किरपा आई ते परमात्मा की किरपा नूं भी तूं काली ना कर दी। तो वारी वारी गुरबाणी के फैसले ने। तो इस तो अगे मैं अपने शब्दां नूं विश्राम देवां। समाप्ति का समा हो गया। हर एक गल टाइम के नाल शोभनीक शोभा दिंदी है। बिना टाइम तो कोई भी वस्तु है बेरसी हो जाती है। गुरु साहिब जी किरपा करन। समाप्ति का समा। भुल्लां चुकां दी खिमा आईयां संगतां दा बहुत धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलाए फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की